A foggy Christmas trip to Dagshai. The next morning was super cold. I looked out the window and couldn't see the street because of the thick, white fog. Mira and I had to pack our bags quickly. We put in our heaviest woolens and my favorite camera. Mira was so busy stuffing her teddy bear into her backpack that she almost forgot her gloves. At exactly 10:15 a.m., it was time to leave. The air was crisp and smelled like pine. Dad was busy loading the heavy bags into the trunk of our car, making sure everything was safe. I stood by him with my vlog camera, recording the start of our journey. "To the hills," I shouted, and Dad gave me a high five. As we drove, the highway started to curve upward. The fog got even thicker. Mom and Mira were looking out of their window, amazed by how the trees seemed to play hide and seek in the clouds. Everything felt quiet and magical, like we were driving through a giant bowl of whipped cream. Suddenly, the forest became very dense. The trees were so tall. We saw a yellow sign that said, "Beware of wild animals." Mom told me that leopards sometimes roam these hills. I kept my eyes wide open, hoping to see a spotted tail or a pair of glowing eyes in the bushes. But the forest kept its secrets. We finally reached Dagshai. It's a very quiet hill station kept neat and tidy by the Indian Army. The first stop was the Dagshai Jail Museum. It's a huge old building made of dark stones. Dad walked with Mira, explaining that this place was very old. Mira looked at the high stone walls and stayed very close to Dad's side. Inside the jail, the air was cool, and the corridors were very narrow. There were heavy iron bars everywhere. I felt like an explorer in an ancient castle. Mira was a little scared of the dark corners, so she held my hand tightly as we peeked into the old cells. We learned so much about the people who stayed here a long time ago. After the museum, we were all very hungry. We found a small, cozy tea shop run by a very kind man named Harman Singh. He wore a bright turban and had the biggest smile. He served Mira a plate of hot, crispy patties and some warm tea. The steam from the snacks felt so good on our cold faces. The fog started to lift just enough for us to see the beautiful Shiv temple. It was surrounded by clouds that looked like they were floating right through the temple bells. Mom and Mira went inside to say a little prayer. The sound of the temple bell echoed through the quiet hills, making everything feel peaceful. On our way back, we stopped at Ishwar restaurant for their famous bread pakoras and kulfi. Even though it was freezing, the kulfi was delicious. Now we are back at the hotel, and I'm so tired but so happy. Thanks for joining our Christmas trip. Don't forget to like, share, and subscribe. See you in the next vlog. A foggy Christmas trip to Dagshai. चंडीगढ़ के होटल माउंट शिवालिक में रात का समय था. बाहर ठंड बढ़ रही थी. तभी पापा और मम्मी ने हमें अपने पास बुलाया. पापा बोले, "बच्चों, कल 26 दिसंबर को हम दक्षय की पहाड़ियों में घूमने जा रहे हैं." यह सुनकर मेरी और मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. अगली सुबह जल्दी ही हमारी आंखें खुल गईं. बाहर खिड़की से गहरा कोहरा दिखाई दे रहा था. मैंने और मीरा ने जल्दी जल्दी अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया. हमने अपने सबसे भारी ऊनी जैकेट, टोपी और मोजे अंदर रखे. दक्षय में बहुत ठंड होने वाली थी. सुबह के 10:15 बज रहे थे जब हम होटल से निकले. पापा गाड़ी चला रहे थे और मैं उनके बगल वाली सीट पर बैठ गया ताकि रास्ते का पूरा मजा ले सकूं. मम्मी और मीरा पीछे बैठकर गपशप कर रहे थे. हमारी दक्षय की यात्रा अब शुरू हो चुकी थी. जैसे ही हमारी गाड़ी हाईवे से ऊपर पहाड़ों की ओर मुड़ी, कोहरा और घना हो गया. सफ़ेद धुंध ने पूरी सड़क को ढक लिया था. मम्मी ने मीरा को खिड़की से बाहर पहाड़ों का सुंदर नज़ारा दिखाया जो कोहरे में छिपे हुए लग रहे थे. सड़क धीरे धीरे संकरी होती जा रही थी. हम घने जंगलों के बीच से गुजर रहे थे. अचानक मैंने सड़क के किनारे एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, "जंगली जानवरों से सावधान।" मुझे थोड़ा डर भी लगा और रोमांच भी महसूस हुआ. ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ बादलों को छू रहे थे. मीरा बार बार चिल्लाती, "देखो मम्मी, हम बादलों के अंदर जा रहे हैं." कोहरे की वजह से सब कुछ जादुई और रहस्यमयी लग रहा था. हवा बहुत ठंडी और ताज़ी थी. आखिरकार हम दक्षई पहुंच गए. यह एक आर्मी छावनी क्षेत्र है
इसलिए यहाँ बहुत शांति और सफाई थी। प्रवेश द्वार पर फौजियों को देखकर मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। पापा ने बताया कि डगशई भारत के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। हमारा पहला पड़ाव डगशई जेल म्यूजियम था। ये पुरानी पत्थर की इमारत देखने में बहुत शांत लेकिन थोड़ी गंभीर लग रही थी। पापा और मम्मी म्यूजियम के गेट के पास खड़े होकर इसके इतिहास के बारे में बातें करने लगे। म्यूजियम के अंदर जाना एक अलग ही अनुभव था। हमने पुरानी जेल की कोठरियां और लोहे की भारी सलाखें देखीं। मैंने और मीरा ने एक सलाख के पीछे खड़े होकर देखा कि पहले के समय में कैदी कैसे रहते होंगे। पापा हमें इतिहास के बारे में बता रहे थे। जब हम सजा कक्ष पनिशमेंट रूम पहुंचे तो मीरा थोड़ी डर गई और उसने पापा का हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने पापा से बहुत सारे सवाल पूछे कि वहाँ क्या क्या होता था। आगे बढ़ते हुए हमने वो कमरा देखा जहाँ लोहार जेल के औजार और जंजीरें बनाते थे। मम्मी ने मुझे दिखाया कि कैसे पुराने समय में हाथों से काम किया जाता था। वहाँ रखे भारी हथौड़े और आग की भट्टी देखकर हम हैरान रह गए। म्यूजियम देखने के बाद हमें भूख लग गई थी। हम पास की एक दुकान पर गए। वहाँ एक सरदारजी अंकल ताज़ा चाय और गर्मा गर्म पैटीज बेच रहे थे। ठंड के मौसम में उस गर्म खाने का स्वाद ही कुछ और था। पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था आई लव डागशाई। ये जगह बहुत सुंदर थी। मैंने और मीरा ने वहाँ खड़े होकर एक शानदार फोटो खिंचवाई ताकि हम इस यात्रा को हमेशा याद रख सकें। इसके बाद हम पास के प्राचीन शिव मंदिर गए। मंदिर का वातावरण बहुत शांत था और चारों ओर बादल तैर रहे थे। मम्मी और मीरा ने वहाँ माथा टेका और शांति से कुछ देर बैठीं। मंदिर की घंटियों की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। डगशई के आर्मी एरिया में घूमते हुए हमने बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखे। जगह जगह प्रतिबंधित क्षेत्र के बोर्ड लगे थे। पापा ने मुझे समझाया कि सैनिकों की गोपनीयता का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। शाम ढलने लगी थी और कोहरा और भी गहरा हो गया था। अब हमारे वापस चंडीगढ़ लौटने का समय था। पापा ने गाड़ी चालू की और हम पहाड़ों से नीचे की ओर उतरने लगे। सड़क पर अब लाइटें जल चुकी थीं जो कोहरे में धुंधली दिख रही थीं। रास्ते में हमें भूख लगी तो हम ईश्वर रेस्टोरेंट पर रुके। वहाँ की सजावट बहुत अच्छी थी। मैंने और मीरा ने मेन्यू कार्ड देखा और तय किया कि हम कुछ चटपटा खाएंगे। हमने वहाँ गर्मा गर्म पकौड़े और चाट खाई और हाँ, ठंड के बावजूद हमने वहाँ की मशहूर कुल्फ़ी का भी मज़ा लिया। मम्मी और मीरा कुल्फ़ी खाते हुए बहुत खुश लग रहे थे। रात का सफ़र लंबा था। कार की हल्की आवाज़ और थकान की वजह से हम दोनों को नींद आने लगी। चंडीगढ़ पहुंचने तक मैं और मीरा पीछे की सीट पर एक दूसरे का सहारा लेकर सो गए थे। वापस होटल पहुंचकर मैंने अपना कैमरा उठाया। दोस्तों, डगशई की यह ट्रिप बहुत ही यादगार थी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।